Hello everyone, my name is Avantika and I am the Google Developer Student Club Lead at Lakshmi Narayan College of Technology, Bhopal. I welcome you all to this new session, weekend special, from uh, from our point of view. So we are planning to conduct every weekend, a new session, so that we are able to teach our students on weekends. Usually, weekends is all about fun, having fun with your families and friends. But here we are doing just the opposite, at least teaching you all something or the other in the weekend. So yesterday we had a basic session on web development and the enthusiasm was huge. So today we have a basic session on UI and UX, about learning about Figma and everything. And probably next week, let's see what will be the upcoming technology you guys will be learning. So I have with me Rishad. He is our UI UX mentor at GDSC, and he will be starting with this session today. So Rishad, you can start with the session. Cool. Thank you so much, Avantika. So, hi everyone. How all you doing? Like, please send me a thumbs up if you are active over here. App. I'm waiting. Cool. कोई active नहीं है मतलब. Cool. Okay. पीयूष सक्सेना. Hi. आयुष. Hi. Cool then. Start करते हैं. Like आज का पूरा session एक tool पे होने वाला है जिसका नाम है Figma. बहुत सारे tools हैं online like Adobe XD हो गया, Figma, and so many tools are there to like UI design, to design your UI or stuff. आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं फिग्मा के बारे में. फिग्मा के दो बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं. लाइक फिग्मा फ्री है. फर्स्ट ऑफ ऑल फिग्मा फ्री है एंड द सेकंड पार्ट इज फिग्मा allows you to like collaborate with other designers for free and that's it. तुम लोग किसी भी के साथ collaborate करके अपनी UI design start कर सकते हो, designing start कर सकते हो, कोई भी team of designers किसी के साथ भी. So yeah, so what Figma basically is, it is a UI design and prototyping tool, which means that before any website or any app goes live, you need the idea about how the website is going to work and function. And here comes our today's hero. So, okay, wait. First of all, I'll tell you something about like this session is divided into few parts. I have a checklist for that. Okay, cool. Like we'll start from setting up an account. Then we'll move on to overview of the dashboard. Then we'll discuss about process to design any mobile app or a website. Then I'll show you how we can how we came up with our GDSC LNCT application. Then we'll create a sample website live on this session. And then we'll learn some stuff about animating our elements using Smart Animate in Figma only. And at last, we'll talk about the future of UI UX design. So once again, before starting, please shoot me some thumbs up so that I know I can know that you guys are listening. Hey, hello. Cool. So let's jump to my laptop screen. I'll just turn off my camera. Till then, everyone, don't be quiet. Please, I request you all to please view this workshop through your desktop and start designing with us. We don't want just to see you through our mobile phones. Just go through laptop and start designing with it. Okay, so here we are
on the official website of figma.com. Now you'll see a few things over here. We'll just create an account over here. You can just click on sign up, enter your email ID and password as well, and you'll just click on create account and you're good to go. I already have an account, so I'll just log in. कूल तो जैसे लॉग इन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, और ये वाला पार्ट जो है वो सबको विजिबल नहीं होगा बिकॉज अभी अभी सबने स्टार्ट करा, जैसे जिसने स्टार्ट करा होगा उसको ये सारी चीज़ें दिखनी होंगी, नहीं रही होंगी, लाइक प्रोजेक्ट्स मेरे पुराने प्रोजेक्ट्स नहीं दिख रहे होंगे। एंड अपन का सिर्फ फोकस रहेगा इस पे न्यू डिज़ाइन फाइल। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक न्यू फिगजैम फाइल इम्पोर्ट फाइल, एंड लेफ्ट साइड में सारे सेक्शन है लाइक कम्युनिटी, ये फिगजैम वाला सेक्शन है मेरा, लाइक अगर किसी ने अभी तक फिगजैम नहीं करा है तो ये सेक्शन उसमें एम्प्टी होगा। कूल। तो अगर किसी को कोई फाइल डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, न्यू फाइल डिज़ाइन करनी है, तो फिर यहाँ पे क्लिक करके वो स्टार्ट कर सकता है। उसके पहले मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, लाइक ये न्यू फिगजैम फाइल कुछ नहीं है, तो बस एक टूल है जहाँ पे तुम लोग इन्वाइट कर सकते हो डिज़ाइनर्स को, एंड साथ में कोलैबोरेट करके कोई सी डिज़ाइन बना सकते हो, लाइक कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तुम लोग तो उस पर वर्क कर सकते हो साथ में। एंड दिस इम्पोर्ट फाइल ये भी कुछ नहीं है, लाइक बेसिकली तुम लोग को जो भी चीज़ इंपोर्ट करनी है फिग्मा में, तुम्हें ऐड करना है इमेजेस या कुछ भी फाइल है तुम्हारी पहले से ही बनी हुई है, फिग्मा फाइल कोई या स्केच फाइल है, एडोबी एक्सडी से तुमने एक्सपोर्ट करा है कुछ, उसको यहाँ एडिट करना है, यू कैन डू दैट ओवर हियर। एंड कम्युनिटी कुछ नहीं है, लाइक ये एक पब्लिक स्पेस है जहाँ पे तुम लोग पब्लिश कर सकते हो अपने डिज़ाइन फाइल्स, एंड कोई भी वर्ल्ड में कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, एडिट कर सकता है, यूज़ कर सकता है। कूल। तो अगर अपन को जैसे पहला फाइल डिज़ाइन करनी है, अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू डिज़ाइन फाइल, एंड ओके सबसे पहले ये वाली स्क्रीन दिखेगी, सब कुछ एम्प्टी है, और अगर तुम पहली बार स्टार्ट कर रहे हो तो शायद से डर गए होगे देख के कि क्या करना है, या डरे नहीं हो तो पता भी नहीं होगा क्या करना है। एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं लाइक कुछ टूल्स हैं, बेसिक टूल्स हैं। पहला टूल है लाइक ये वाला मूव एंड स्केल। यहाँ पे मूव से कुछ भी तुम अगर एलिमेंट ड्रॉ करते हो, लाइक मैं दिखाता हूँ एक टेक्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऋषभ अपना नाम लिख देता हूँ मैं, एंड इसको थोड़ा रीसाइज कर लेते हैं, इसको रीसाइज कर दिया। एंड अगर मूव टूल मैं यूज़ करूँगा, इसके लिए शॉर्टकट है वी, अगर मैं वी प्रेस करता हूँ एंड तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। एंड अगला इसमें एक और टूल है स्केल, जिससे मैं स्केल कर सकता हूँ पूरा एलिमेंट एक साथ ही, लाइक अगर मैं स्केल यूज़ करा है तो मैं उसे स्केल कर सकता हूँ, उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। कूल। आगे चलते हैं, फ्रेम टूल है जो कि अपना एक आर्टबोर्ड अपने को बना के दे देगा। फ्रेम टूल यूज़ करने से एक आर्टबोर्ड मिल जाएगा तुम लोग को, लाइक इसे कैनवास की तरह समझ लो कि ये कैनवास दे देगा तुम्हें जिसपे तुम अपने सारे काम कर सकते हो, जो भी एलिमेंट सारे इसमें यूज़ करके तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। कूल। उसके आगे है अपने पास एक शेप्स का सेक्शन, लाइक यहाँ पे सारे शेप्स हैं जो भी तुम्हें काफ़ी हैं यार, ये रेक्टेंगल, एक लाइन और एक एरो टूल, ये सारे शेप्स काफ़ी हैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से डिज़ाइन बनाने के लिए, अच्छे से एक प्रोटोटाइप क्रिएट करने के लिए, अच्छा से एक वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने के लिए काफ़ी है ये, ठीक। और उसके आगे है पेन टूल अभी देखेंगे अपन क्या होता है आगे। एंड देन टेक्स्ट जो मैंने दिखा दिया अभी, कुछ भी टेक्स्ट अपन को ऐड करना है तो विल यूज टेक्स्ट टूल। एंड हैंड टूल टू मूव एनीथिंग हियर एंड देयर। एंड देन कमेंट खुद के लिए है कि तुम कमेंट कर सकते हो कि क्या है ये क्या नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को एक फ्रेम चाहिए, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से, इसको मैंने डिलीट कर दिया। सबसे पहले फ्रेम पे क्लिक करना, एंड राइट साइड में देखो, राइट साइड वाले पोर्शन में तुम लोग देखोगे कि ये बहुत सारे वो आ गए, स्क्रीन के नेम्स आ गए, लाइक टैबलेट, डेस्कटॉप किसके लिए चाहिए। तो अगर मैं देखता हूँ कि अगर डेस्कटॉप Sorry to interrupt, Rishabh. They wanted you to be a little bit slower. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो ठीक है, कूल। तो कहाँ पे था मैं? फ्रेम्स की बात कर रहे थे। तो फ्रेम्स में लाइक डेस्कटॉप, टैबलेट या जो भी तुम लोग यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए भी डिज़ाइन करना है तुम लोग को मोबाइल एप्लीकेशन, तुम लोग वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मैकबुक प्रो चूज़ कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप के लिए वेबसाइट आज अपन लोग लाइक डिज़ाइन करने वाले हैं वेबसाइट, सो एक पोर्टफोलियो बेसिकली डिज़ाइन करेंगे अपन आज फिग्मा में। तो इसलिए मैं ये चूज़ कर लेता हूँ मैकबुक प्रो स्क्रीन साइज। तो ये पूरे स्क्रीन साइज एक आ गई मेरे पास, मेरे पास कैनवास आ गया। अब इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। बेसिकली कुछ नहीं, कैनवास है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, एलिमेंट्स में ऐड करूँगा, उसकी करनी वेबसाइट, मेरा प्रोटोटाइप अच्छा दिखेगा, ठीक है।
तो ये हो गया अपना। और राइट साइड में देखना, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, लाइक you can change the background color from white to red or anything. I'll just keep it white. And so many things like stroke, you can add stroke. See यहाँ पे border आ गया है किसके अगल बगल में. And effects, drop shadow, drop effect, तुम यहाँ से डाल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं. Effects मैं दिखा देता हूँ. Effects अगर मैं इसको एक drop shadow 3D effect देना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ. मैंने x और y axis पे change करे थोड़े numbers and here we go. ये आई गेस तुम लोग को दिख रहा होगा, ये काफ़ी ये थोड़ा 3D सा लुक दिख रहा होगा इसमें. सो ये मैंने किससे करा, इफेक्ट टूल से. इफेक्ट टूल्स जो कि है राइट साइड में बॉटम में, इफेक्ट टूल. ठीक है, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मेरे को नहीं चाहिए. मेरे को एक सिंपल सी वेबसाइट मेरे को बनानी है, इसमें नहीं यूज़ करूँगा मैं कैनवस में एक स्ट्रोक भी और कुछ भी. सो आई जस्ट डिलीट दैट. स्टार्ट करते हैं. कोई एक लाइव डिज़ाइन करने वाला है अपन एक वेबसाइट. सो मेरे को लगता है कि अपन को सबसे पहले को तुम लोग कुछ भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो उसमें सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं. लाइक एक प्रोटोटाइप तुम लोग बनाते हो मतलब कुछ भी, तो तुम लोग को एक नैव बार, सबसे पहले तुम लोग किसी वेबसाइट में एंटर करते हो तो एक नैव बार दिखता है टॉप में. नैव बार में लाइक लोगो होता है वेबसाइट का एंड देन सम पेजेस लाइक होम पेज, अबाउट पेज एंड सो ऑन. सो या यहाँ पे अपन कुछ लोगोस ऐड कर देते हैं. लोगो कहीं से मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट लोगो ये यूज़ करेंगे अपन. तो मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं टेक्स्ट, तो मेरा टेक्स्ट आ गया एक. पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर रहे हैं तो मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ एज ए. एंड यहाँ राइट साइड से, राइट वाली विंडो से, राइट वाले स्पेस से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ. लाइक मैं फॉन्ट चूज़ करूँगा, मेरा फॉन्ट चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे तुम लोग बहुत सारे फॉन्ट्स हैं. वो आई विल चूज सम, ओह नो, I'll choose Poppins. It's my favorite and it looks good as well. So yeah, I'll just resize it. Oh, 40 would be great. Cool. अब ठीक है, अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है. यहाँ पे मैं इसको बोल्ड रखूंगा बिकॉज ये मेरे उसका लोगो है. लोगो एज अ टेक्स्ट लोगो है. टेक्स्ट लोगो है मेरे वेबसाइट का. पोर्टफोलियो जो अपन डिजाइन करने वाले हैं उसका ये लोगो है. ठीक है, देन और भी नैव बार में मैं चीज़ें एलिमेंट्स ऐड करता हूँ लाइक होम पे अगर जाना है तो फिर मैं ये यूज़ कर सकता हूँ. ये थोड़ा सा लाइट रहेगा बिकॉज इसको इतना डोमिनेटिंग मेरे को शो नहीं करना है. सो आई जस्ट कीप इट ए लिटिल लाइट. 30, no, 35. Cool, 35 is good. I guess medium. It's medium. And I'll just copy some of it, like about a section and about मैं resume and skills ऐड कर सकते हैं, skill section ऐड कर सकते हैं कुछ में. एंड ये आपको अपने बता देगा कि ठीक है बीच में है कि नहीं, अलाइंड है कि नहीं, सेंटर वर्टिकल अलाइन है कि नहीं है. एंड ये अबाउट अ सेक्शन. अबाउट मी. गुड. ओके, एक सेक्शन और ऐड कर सकते हैं लाइक कॉन्टैक्ट मी. ओके, ये मैं कॉपी कैसे कर रहा हूँ, लाइक तुम लोग अगर विंडोज यूजर हो तो ऑल्ट प्रेस करके कोई भी एक एलिमेंट चूज करके उसके बाद उसको ड्रैग कर सकते हो तो अपने आप कॉपी हो जाएगा वो. ठीक है, और मैक मशीन में ऑप्शन बटन प्रेस करके तुम लोग होल्ड करके ये कर सकते हो. ठीक है, बेसिक स्टफ. आ जाओ, ये कौन सा सेक्शन बटन था, कॉन्टैक्ट अस. तो अब स्किल्स, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे बटन हैं मेरे पास. आई गेस इनको अलाइन करना है या अलाइन नहीं है अच्छे से. नाइस. I'll just resize it थोड़े. It looks good, I guess it looks good. Now I'll just add a rectangle shape so that मैं एक 3D look create कर सकता हूँ कि nav बार थोड़ा सा ऊपर है पीछे वाले कंटेंट के बैकग्राउंड.
में जो भी कंटेंट है उसके ऊपर, तो मैं जैसे एक बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। एक रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट करा, आर प्रेस करके रेक्टेंगल आ गया एंड मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। मैं इसको मेरे को उसको पीछे करना है, देन आई विल जस्ट ब्रिंग टू सेंड टू बैक, just I sent it to back and see. I just choose the same color, but it says that I'll add a effect. See, it kind of looks like it's in 3D. It's a little upward. Cool. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ सेक्शन ऐड करते हैं। मैंने एक सिंपल सी वेबसाइट सोची है, लाइक एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक सिंपल सी, जिसमें होम पेज पे आपका नाम और बेसिकली जो भी तुम कर रहे हो वो होगा, एंड उसके बाद स्किल सेक्शन, ये सब हम ऐड कर देंगे अलग अलग बना के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करते हैं, एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, लाइक माय नेम इज जो भी है एंड विल ऐड हाय। कूल, इसको तुम लोग रिसाइज कर सकते हो कौन से टूल से, स्केल टूल से, जिसको तुम यूज कर सकते हो के प्रेस करके भी और डायरेक्टली सेलेक्ट करके भी। देखना जब भी तुम रिसाइज करोगे के टूल से, तो देखना यहाँ पे फॉन्ट भी उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जब भी स्केल टूल से तुम लोग उसको रिसाइज करोगे तो फॉन्ट ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से करके, अपना उसका फॉन्ट अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता जाएगा जितने प्रोपोर्शन से तुम उसको इंक्रीज करोगे। आई गेस इतना काफ़ी है ये, ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड मैं नहीं चाहता कि पूरा मेरा कलर सबका सेम रहे, सो और ये होम पेज है तो मैं होम पेज को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। नाइस, इसमें थोड़ी स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे मेरा फॉन्ट। कूल, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। एंड मैं एक कलर चेंज कर दूंगा अपने नेम का, ताकि ये थोड़ा अपीलिंग भी लगे और अच्छा भी लगे। सो जस्ट मैं इधर जाऊंगा, राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ से मैं फिल में जाके कलर चेंज कर देते हैं, समथिंग लाइक ब्लू। यस, कूल, इट लुक्स गुड, नाइस। सो ये हो गया। एंड नीचे इसके मैं एक बटन ऐड कर दूंगा। बटन ऐड करने के लिए मैं बस एक वो करूंगा, रेक्टेंगल टूल यूज़ करूंगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा, छोटा सा रेक्टेंगल, सो दैट लाइक कनेक्ट मी और गो टू माई स्किल सेक्शन। ये वाला टैब है ये, इसका भी ठीक है। पहले तो इसका मैं एक इसमें कॉर्नर रेडियस ऐड कर देता हूँ। कॉर्नर रेडियस के लिए यहाँ राइट साइड में देखोगे विंडो में कॉर्नर रेडियस में लिखा हुआ है, डायरेक्टली कुछ भी कर सकते हो तुम, लाइक मैं इसको 40 करके देख लेता हूँ। नाइस, 40 इज गुड, 30 हाँ, looks great, cool. I'll just replace it somewhere over here, change its color to cool, ये अच्छा लग रहा है। ये सेम कलर है जो मैंने टेक्स्ट में यूज़ करा और यहाँ बटन में मैंने वही सेम कलर यूज़ कर लिया। एंड I'll just add a text which says connect, like connect with me or cool, looks great. फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसका। नाइस, ओके कूल। सो कनेक्ट और आई गेस कॉन्टैक्ट नहीं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ये कनेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करता हूँ, लाइक कॉन्टैक्ट मी समथिंग लाइक दैट। लुक्स गुड, काफ़ी सही है। यहाँ पे तुम लोग राइट साइड में एक अपना खुद का वो ऐड कर सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो। मैं अपनी इमेज नहीं ऐड करने वाला, बट हाँ एक इलस्ट्रेशन ऐड कर देता हूँ। मैं इसमें एक इलस्ट्रेशन ऐड कर सकता हूँ। इलस्ट्रेशन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास ऑनलाइन, बहुत सारे ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं जो तुम्हें फ्री में बहुत सारे इलस्ट्रेशन यूज़ करने के लिए दे सकती हैं।
And one of my favorite is Andro.co. Andro.co is really good. Like out. Andro.co से एक मैं illustration pick करता हूँ. और Andro.co से अगर तुमको नहीं लेना है, like एक 3D illustration लेना है, तो तुम लोग basically वापस अपने Figma इसमें जा सकते हो डैशबोर्ड में. यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन काम आ सकता है तुम्हारा. लाइक कम्युनिटी में मैं क्लिक करूंगा. यहाँ मैं सर्च कर लूंगा 3D illustrations. 3D illustrations, and see I have a bunch of illustrations over here. I'll just pick any one of them. This one looks good. Okay. कोई सा मैं इसमें से एक चूज कर लूंगा illustration and वहाँ पे ऐड कर दूंगा अपनी वेबसाइट में जो मेरे को अच्छा लग रहा है. I think this one will look good according to our color scheme. So yes, back to files. This is our file. I just pasted it over here. काफी बड़ा है तो मैं इसको resize कर सकता हूँ. Rishabh, your screen is paused, I guess. You need to share your full screen now. Oh, screen. I guess visible नहीं है क्या screen? You have only shared a window now, that's why it's paused. Cool. मैं इसको फिर से share कर सकता हूँ. Share this tab instead. Nice, visible now. It's visible now. Cool. So what I did was I just कहाँ तक पहुँच गए थे, लाइक कहाँ तक देख लिया था मैंने, वो दिखा दिया था क्या कहाँ से मैंने इंपोर्ट करा है अवंतिका? हेलो, ही अवंतिका. Import करना वाला they couldn't see it, but yeah, he has just downloaded the image and import करना you can tell like कैसे import किया एक बार. Cool. So I'll just delete it again and go back to my file from where I took this image. Like I'll just go over to this library and I pick this image. I'll just copy it, Control C or Command C for Windows and Mac users. I'll just copy it, go back to my file again, like file जिसमें मैं draw कर रहा था, ये वाली file अपनी, and I'll just paste my image over here. I'll just paste, Command V, resize it, and yeah, we're good to go. I think this looks good, I guess. Yeah, I think this looks good. Now we can move on to our second pages. यहाँ पे नीचे एक और ऐड कर देते हैं, like LinkedIn and GitHub and other links में और ऐड कर देता हूँ. तो जहाँ से अगर मेरे को तुम लोगों को कुछ वो चाहिए, आइकन्स चाहिए, तो वेबसाइट उसके लिए बहुत सारी हैं. लाइक मैं गूगल कर लेता हूँ. मेरे पास है आइकन्स 8, आइकन्स 8, आइकन्स 8. आइकन्स 8 से मैं एक सिंपल सा लोगो यूज उठा लूँगा लिंक्डइन का. I guess हाँ ये अच्छा लगेगा. I'll just copy image from here and I'll just paste it over here. Great, looks good. I'll just resize it. Great. Again, I'll डाउनलोड ए गिटहब आइकन. जो भी तुम लोग को ऐड करना हो तुम ऐड कर सकते हो. मैं 2-3 ही चीज़ ऐड कर रहा हूँ, लाइक गिटहब. नाइस, ये वाला आइकन अच्छा लग रहा है मेरे को. मैं कॉपी करूँगा इमेज, कॉपी इमेज, and then I'll just paste it over here. Nice. जूम करके मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा इन सब इमेजेस को, so that
Nice, I guess they look good. I'll just adjust it. Cool, I guess it's looking good. मेरे को थोड़ी इसकी opacity कम करनी है, ये 3 जो drop shadow मैंने add करी है, so I'll just go here and 15% would be good. Great. Nice, looks good. Cool. So here we are with our homepage, and few buttons and some social buttons as well. Now I'll just design another page. We'll design a skills page, like about my skills, tech stack page एक अलग से मैं डिजाइन करूंगा. So फिर से कुछ नहीं करना है, मेरे को एक फ्रेम पिक करना है, एक फ्रेम में पिक करूंगा यहाँ से, सेम डेस्कटॉप सेम साइज का एक और फ्रेम मैंने चूज करा, नीचे उसके ऐड करा, एंड यहाँ पे मैं वापस से चालू कर दूंगा अपना काम. सिंस मेरे को ये nav bar सेम रखना है, बाकी सारा कंटेंट चेंज होगा, तो आई जस्ट कॉपी दिस पार्ट. सारी चीज़ें मैंने इसको कॉपी करके ग्रुप करा एक, एंड आई जस्ट कॉपी इट, और आई जस्ट डुप्लीकेट इट बाय प्रेसिंग alt or option button. Nice, we have our nav bar. ये skills page होगा तो I'm sorry. Cool. Since ये skills page है तो मैं skills वाले text को highlight कर दूंगा, इसको थोड़ा bold में रखूंगा मैं. This looks good. And then मैं यहाँ थोड़े और stuff add कर दूंगा जो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, लाइक अबाउट मी सेक्शन, ये स्किल सेक्शन है, तो जो भी स्किल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ मैं इसमें ऐड कर दूंगा. स्किल्स के लिए मैं सोच रहा हूँ इसमें एक कार्ड्स ऐड कर दूँ, थोड़े कार्ड्स ऐड कर देता हूँ मैं इसमें. कार्ड्स में कैसे बनाने वाला हूँ मैं, बेसिकली बस एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लूँगा. रेक्टेंगल मैंने आर प्रेस करके लाया, एंड या आई गेस लुक्स गुड. And I'll just duplicate it. Nice. I'll add some corner radius. I'll give it a corner radius of 30. Nice, looks great. And एक टेक्स्ट इधर ऐड कर दूंगा मैं. टेक्स्ट डायरेक्ट यहाँ से मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा. सारा टेक्स्ट जो मेरे पास इधर पर है, जो हेडिंग है, मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा ऑल प्रेस करके. सिंपल पहले मूव टूल यूज करा मैंने, ऑल प्रेस करके, एंड डुप्लीकेट कर दिया डायरेक्टली. स्किल सेक्शन है तो मैं इसकी हेडिंग स्किल्स ही कर देता हूँ. एंड अगेन उसके नीचे एक और बेसिक कुछ भी मैं एक लाइन ऐड कर सकता हूँ, जो भी तुम्हें ऐड करनी हो तुम कर सकते हो. इसको इसकी साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको. 25 would be good. Nice. यहाँ कुछ भी रैंडम टेक्स्ट ऐड कर सकते हो तुम लोग अबाउट योरसेल्फ. ग्रेट. मेरे को इसको थोड़ा वो चेंज करना है. मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसको चेंज करना चाहिए कलर, बैकग्राउंड कलर. अभी कार्ड्स डिजाइन कर रहे हैं अपन. सो आई विल डिजाइन ए कार्ड. I'll change its background color to white. Add a stroke. What stroke does is it gives a border radius. It gives a border to it, to our elements. You can adjust its cool. Nice, looks good. Border radius सबके अलग अलग हैं. इसका border radius 2, सबको मैं 2 कर देता हूँ. Even लगे. And I'll give it a drop shadow. Change its axis. 1919. Yeah.
Cool, I guess looks great. And just remove the stroke. No, stroke touch, ठीक था. Give it a value of 0.5. Nice, looks good. कुछ स्किल्स ऐड कर देता हूँ इसमें, लाइक वेब डिज़ाइन, डेवलपमेंट, यूआई डिज़ाइन, जो भी तुम्हें ऐड करना है इसमें कर सकते हो. जो भी स्किल्स जो भी तुम लोग को आता है वो तुम इसमें ऐड कर सकते हो. मैं सबसे पहले सोच रहा हूँ कि बीच में यहाँ पे एक इमेज होगा, एक आइकन होगा, देन सम टेक्स्ट ओवर हियर. सो मैं कुछ भी इमेज ऐड करनी है, मैं चाहूँगा पहले कोई सी भी एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं अपन. लाइक इमेजेस कहाँ मैं एक इमेजेस कोई सी इमेज सर्च कर लेता हूँ मैं, जैसे कि वेब डिज़ाइन देखता हूँ कुछ लोगों को अगर मिलता है मेरे को यहाँ से तो मैं डायरेक्ट यहीं से ऐड कर दूंगा. कूल, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगोज हैं, मैं यहाँ से एक लोगो पिक करके मैं ऐड कर दूंगा. लोगो तुम लोग मत ऐड करना बिकॉज यार इमेज और लोगो बहुत डिफरेंस होता है साइज में. स्टिल जस्ट कॉपी दिस इमेज. Resize it using scale tool. Your screen is not visible अभी. अब है. हाँ. I'm so sorry, guys. I'm so sorry. Yeah, it's visible. Cool. अब ठीक है, visible है अब ये. एक मैंने एक कॉपी करा आइकन और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया. I'll just give it a heading. I'll just copy this text and paste it over here. Bring it to front. Bring to front. I don't know why it isn't working, so I'll just delete it and add a text over here. Cool, I'll add some other icons as well. I'll just copy this image and paste it over here. Cool. I'll just paste it over here. Web development, I'll just give it a heading of web development, and yeah. Align it to the center of our card. Great. And I just add another icon. And search for photography. Let's see if I'm able to find a camera image. I'll take this one and add it over there. Copy image. Just add it over here. Just paste it over here. Resize it using a scale tool. Web dev, just copy it, and photography. Cool. I guess I need to resize it, and yeah, looks good. So yeah, we are ready with our 2 pages, a home page and a skill page. Now I'll show you guys how to animate it. एक बार इसको live देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है ये. So I'll just select a frame. जो मेरे को live देखना है मैं उसको frame को select करूँगा, and top right में एक बटन दिख रहा होगा हम लोग को, play button. So I'll just click that, and
ये वाला टैब पॉपअप हो जाता है जैसे तुम उस पर क्लिक करोगे तो। सो या अच्छा लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा। एंड अब मैं ऐसा कुछ करना, इसको एनिमेट कर देते हैं। लाइक अगर मैं स्क्रीन पे क्लिक करूंगा या फिर कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करूंगा तो फिर वो दूसरे मेरे पेज पे जो मैंने नया बनाया उस पर रिडायरेक्ट हो जाए। सो वो करने के लिए मैं वापस अपने इस पे आने वाला हूँ, स्क्रीन पे आके कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। लाइक कूल। सो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ या स्किल्स वाले इस पे क्लिक करूँ टेक्स्ट पे, तो वापस मैं इस वाले सेक्शन पे रीडायरेक्ट हो जाऊँ। एक बार इसको भी देख लेते हैं कि ये कैसा दिख रहा है मेरे उसमें लाइव। अगर मैं देखूँ तो कैसा दिख रहा है। मैंने उस प्ले आइकन पे क्लिक करा एंड वापस स्टार्ट कर दिया। कूल। सो ठीक है। एंड ऑल आई वांट इज कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ स्किल्स वाले बटन पे तो मैं इस पर रिडायरेक्ट हो जाऊँ। तो यहाँ पे एक बेस्ट फीचर है जो कि अब बहुत रिसेंटली आया है इसमें, वो की है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में जब भी क्लिक करूंगा यहाँ पे तुम राइट साइड में देखोगे यहाँ डिजाइन था। अभी तक तुम प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे थे पूरे, जो भी तुम एलिमेंट यहाँ सिलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आती हैं। ठीक है। Your screen up. It's up your screen. ओह आई एम सो सॉरी यार अगेन। सो या जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे राइट साइड में तुम लोग देख रहे हो कि डिजाइन, प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं राइट साइड में। ठीक है। एंड जब भी मैं कोई एलिमेंट क्लिक करता हूँ तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ विजिबल है मेरे पास। बट अगर तुम उस यहाँ पे देखोगे प्रोटोटाइप और इंस्पेक्ट का भी सेक्शन है। इंस्पेक्ट कुछ नहीं है, लाइक वो तुम्हें CSS उसकी वो देता है, पूरी प्रॉपर्टीज देता है, विड्थ, हाइट के, पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है उसका, लेफ्ट राइट से जो भी, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें दे देता है। और ये सारी चीज़ें लाइक CSS ये तुम्हारे डेवलपमेंट में काम आ सकती है बाद में। अगर जब तुम इसको हैंड ओवर करोगे डेवलपर को तो ये सारी चीज़ें उसमें काम आएंगी। अपना फोकस अभी है प्रोटोटाइप पे, बिकॉज आई वांट कि जब भी मैं स्किल्स पे क्लिक करूँ ये रीडायरेक्ट हो जाएगा इस पे दूसरा मेरे दूसरे स्क्रीन पे जो मैंने बनाया है, दूसरा फ्रेम जो मैंने क्रिएट करा है, दूसरा पेज, उस पर वो रीडायरेक्ट हो जाए। तो what I'll do is I'll click on prototype, I'll select my skill and you can see like यहाँ पे ये डॉट अपीयर हो गया। अभी तक ये डॉट नहीं था विजिबल। सी जब मैं डिजाइन पे क्लिक करता हूँ वो डॉट नहीं है वहाँ पे। प्रोटोटाइप पे क्लिक करा तो मैं यहाँ पे छोटा सा डॉट दिख रहा है मेरे को। I'll just drag that dot. Okay, wait a sec. Zoom कर लेता हूँ, ये काफी छोटा है। And just I'm so sorry. I'll add interaction over here. And DK why it isn't working. Wait a sec, guys. Okay, cool. I was using scale tool to select that. Cool. So I'll just click again. I'll just show you like मैंने scale पे click करा and prototype पे मैंने click करने के बाद यहाँ पे एक interaction add करा। interaction नहीं भी करोगे तो चलेगा। मैं इसको सारे इंटरेक्शन डिलीट कर दूँ। प्रोटोटाइप इंटरेक्शन में क्लिक करने के बाद ये छोटा सा डॉट है, मैं इसको वापस से सिलेक्ट करके यहाँ पे बस ऐड कर दूंगा। लाइक आई जस्ट डू दिस। कूल। और अब मेरे को यहाँ बताना है राइट साइड में इंटरेक्शन डिटेल्स, लाइक कि कब ये वाली स्क्रीन खुलेगी दूसरी वाली जब मैं उसको। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक ऑन टैप, ऑन ड्रैग, वाइल हवरिंग, लाइक हवर करोगे तो वो वापस वो विजिबल होगा, थोड़ी सी देख ले। आई जस्ट क्लिक ऑन टैप, नेविगेट टू दिस स्क्रीन एंड and just the animation dissolve will look good I guess. Move in, हाँ ये कर लेते हैं। ठीक, मूव इन ये डायरेक्शन है कहाँ से स्क्रीन अंदर आने वाली है। आई जस्ट चूज दिस वन। 300 सेकेंड्स ड्यूरेशन तो मैं ऐड कर सकते हो, उसको मैं वही रहने दूंगा, कुछ चेंजेस नहीं करूंगा उसमें मैं। एंड ऑन टैप, हाँ गुड, वेरी गुड टू गो। एंड अब मैं जब इस पर प्रेस करूंगा लाइव, जब मैं इसको लाइव देखूंगा यहाँ प्रेस करके, तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो कूल ग्रेट। सो मेरा वो नेक्स्ट स्क्रीन आ गई। एंड वापस मैं चाहता हूँ कि अगर मैं होम पे क्लिक करूँ या फिर आइकन पे क्लिक करूँ अपने, तो फिर वापस मैं होम पेज पे चला जाऊँ। तो आई जस्ट ऐड अनदर इंटरेक्शन ओवर हियर। लाइक इस पेज पे मैं एक इंटरेक्शन ऐड करूँगा।
screen. हाँ, that's better. यहाँ इस पेज में एक इंटरेक्शन ऐड करने वाला हूँ, लाइक जैसे मैं सेकंड पेज पे हूँ तो सेकंड पेज से मेरे को जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मेरे को वापस से मेरे होम पेज पे जाना है, जो कि ये मेरी से फर्स्ट स्क्रीन जो है, फर्स्ट फ्रेम जो है, मेरे को उस पर वापस जाना है। तो आई जस्ट ऐड क्लिक ऑन प्रोटोटाइप एंड ड्रैग दिस आइकन टू हियर एंड on tap navigate to Google, move in, just leave it as it is. Great. अब मैं फिर से एक बार इसको लाइव देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है मेरा जो भी मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया। So whenever I click on skills, this screen opens up, and whenever I click on home, it goes back to our home page again and again. Cool. So yeah, and और screens ऐड करते हैं इसमें, और स्क्रीन तुम लोग ऐड कर सकते हो लाइक अबाउट अस सेक्शन, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन, एंड उसके बाद उसको एनिमेट कर सकते हो यूजिंग दिस प्रोटोटाइप सेक्शन ऑन द राइट हैंड साइड। वेट अ सेक गाइस, आई एम जस्ट कमिंग। अवंतिका, आई एम जस्ट कमिंग, है ना? Well, then I just wanted to know, like, have any of you has made the designs? If yes, you guys can share the Figma designs. There must be a share option at the side, and you guys can share the link to us as well. So if any of you have made the designs, they can definitely share it with me, or I would love to review it. So yeah, anyone here who has made or tried made, I can understand he had a better experience with UI UX. He had a very fast pace or something like that. But I just request you all, if you can kind of share whatever work you have done, or maybe in future whatever designs you made, you can share with us. Why is it important to have a good UI and UX is that whenever you go for any project or any hackathon or something like that, UI is something which is very trending nowadays. People won't be accepting your projects, your resumes, or send anything without a good UI or UX stuff. So UI becomes a very important role nowadays. Earlier, people used to don't invest on designers, and they used to just leave it, like they never used to bother about UI and UX part. But now, as the digital media is coming in trend, and as people are more evolving towards technology, it's very important to understand UI and UX apart from whatever coding you are doing. So it would definitely help you in everything, like wherever you will be going, in case of making your own projects or taking part in a hackathon or something like that. If your UI is impressive, your judges or your project owner or boss going to be impressed with you a lot. Many a times it has been happened with me personally. Like I used to have a very good UI, and the judges used to, or the people used to get impressed by my projects only through seeing the particular UI and the prototype which Rishabh was showing. So this all these stuffs will only come through your practice. Okay, so the more you practice, the more experience you get, and the more hands on you get in working with all the tools. There are many other softwares like Adobe XD and everything, but Figma is something which is a very easy, versatile tool. You do not have kind of download any kind of softwares or something like that. You can use this software in your web browsers and share with everyone. So yeah, there must be some network issues from my side, I guess. Software names are Adobe XD. Sketch is meant for MacBook users. Adobe XD. There are many other tools as well for making UIs. Framer, Anima,
And there are plenty of no code tools. All of these are also known as no code platforms nowadays. So yeah, Rishabh, I think you can take ahead. Okay, cool, Avantika. Thank you so much for that explanation part. Okay, so अब एक चीज़ और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक व्यू टैब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ें जो भी अभी अभी अपन ने बनाई है, जो भी डिज़ाइंस अपन ने जो भी स्क्रीन्स क्रिएट करी है यहाँ पे, तो हम लोग और भी एक स्क्रीन्स क्रिएट करके यहाँ पे इसको डायरेक्ट कॉपी करके और भी यहाँ चीज़ें चेंज करके अबाउट अ सेक्शन जो भी सेक्शन ऐड करना है उसको ऐड कर सकते हो जितनी भी स्क्रीन हम चाहो, एंड सब में माइक्रो इंटरेक्शन लगा के सब कुछ ना कुछ चेंज करके इंटरेक्शंस लाइक प्रोटोटाइप पे क्लिक करके तुम जो भी इंटरेक्शन ऐड करना चाहो वो तुम ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। तो कूल, तो उसका सारे पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम्हारे एक ऑलमोस्ट प्रोटोटाइप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, लाइक एक यूआई प्रोटोटाइप तुम्हारे पास अवेलेबल होगा इस टाइम तक। देन उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, लाइक देयर सो मेनी प्लगइन्स लाइक एनिमा, फ्रेमा, सो मेनी प्लगइन्स लाइक जो भी तुम्हारे सारे प्रोटोटाइप को कन्वर्ट कर देंगे एक HTML CSS वेबसाइट में बिना किसी कोडिंग के। सो अगर अभी मैंने स्टार्ट करा एक्सप्लेन करना है एनिमा या फिर फ्रेमर क्या है तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो नेक्स्ट सेशन में पक्का एनिमा अपन कवर करने वाले हैं। अभी मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग ने GDSC LNCT का मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था, क्या प्रोसेसेस थी उसमें। सो आई जस्ट शेयर माय प्रोजेक्ट विथ यू गाइस। सो या I'm sorry for that. Okay, I guess till he's showing the project, what I was telling her. So this framer, anima, and just a second. So this framer, anima, and Bravo, all these are no-code platforms where you can, do wireframes, prototype. From Anima or something, you can definitely get the code, HTML, CSS code from this UI website only. Like there is a plugin which he was telling the Anima, so it's the same only. So Bravo is for mobile apps. You get the React Native code, I guess, or something, and it's a app where you don't have to implement any backend. The backend is implemented using um, an app, a software which is known as Airtable, if you guys know. So there is no backend for it, and you can develop a native application using Bravo. So these are all no-code platforms where if you don't have any coding, you can definitely take this up in hackathons, and these are specially meant for non-technical peoples and very very beginner people who are new into tech and something. ओके कूल। सो ये फिगजैम है, फिगजैम हम लोग ने क्रिएट करा था ताकि हम लोग सब लोग साथ में काम कर सकें एक साथ डिज़ाइन वाले प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा, लाइक मैंने और आदर्श, राइट साइड में तुम देख सकते हो कॉन्ट्रीब्यूटर्स, रिसेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स लाइक आदर्श, सोनी, ऋषभ सिंह, शुभम रात, ये GDC की टीम है हमारी पूरी, ठीक है। तो सबने मिलकर इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करा है UI में। तो बेसिकली जब भी तुम लोग कोई वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन डिज़ाइन करोगे, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है डिज़ाइनिंग की वो ये नहीं होती कि तुम सीधे जाके फिग्मा में स्टार्ट कर दो ऐप डिज़ाइनिंग, UI डिज़ाइनिंग। एक बेसिक पहले तुम्हारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि तुम लोग क्या बनाने वाले हो, देन यू कैन क्रिएट अ वायर फ्रेम। वायर फ्रेम बेसिकली कुछ नहीं है, एक प्रोटोटाइप होता है, लाइक ब्लूप्रिंट होता है कि तुम क्या करने वाले हो, कैसा दिखेगा तुम्हारा ऐप मोबाइल में, डेस्कटॉप पे, या जैसा भी कैसा दिखने वाला है तुम्हारी वेबसाइट मोबाइल में कैसे दिखने वाली है। ओके, एंड ये सब तुम डिजाइन करते हो कि यहाँ पे क्या कंटेंट रहेगा, क्या क्या तुम ऐड करने वाले हो उसमें, क्या क्या स्क्रीन्स होंगी, क्या क्या कौन कौन से पेजेस होंगे उस वेबसाइट में। ये सब तुम एक वायर फ्रेम में पहले पेपर पे या फिर किसी भी एक टूल पे, टेक्स्ट एडिटर या फिर किसी पे भी एक व्हाइट बोर्ड पे तुम डिजाइन बनाते हो बैठ के, पहले वायर फ्रेम बनाओगे, उसके बाद व्हेन यू क्लियर कि ठीक है अब ये वायर फ्रेम सही है, उसमें और कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी है, then you can use Figma to create a prototype of that wireframe. So मैंने और आदर्श ने बैठ के पहले सबसे स्टार्टिंग में कि एक प्रोटोटाइप वो वायर फ्रेम्स क्रिएट करे बैठे कि ओके ये सारी स्क्रीन्स होंगी, एक होम पेज एंड अबाउट अ सेक्शन एंड टीम का एक अलग सेक्शन होगा उसमें। सो हमने पहले बैठ के वायर फ्रेम्स उसके क्रिएट करे,
एंड देन हम लोग ने एक फिगजैम फाइल बनाई, उसमें एक दूसरे को इनवाइट करा सबने, एंड उसके बाद we came up with this। तो सबसे पहले हमने एक उसमें सोचा कि स्प्लैश स्क्रीन आएगी, जैसे हम लोग कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वाले हैं, तो उसके सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने के बाद सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन आएगी। स्प्लैश स्क्रीन कुछ नहीं, बेसिकली एक स्टार्टिंग में स्क्रीन्स होती हैं जो कि आप ऐप के बारे में एक्सप्लेन करती हैं कि क्या है एप्लीकेशन, जो ठीक है। सो ये स्प्लैश स्क्रीन हमने डिज़ाइन करी थी, बहुत सारी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करी थी, लाइक ये तुम यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में कि ये साइड स्क्रीन्स है, यहाँ पे ये स्प्लैश स्क्रीन, बहुत सारी स्प्लैश स्क्रीन डिज़ाइन करी। फाइनली फाइनलाइज कुछ यही वाले कुछ फाइनलाइज हुई थी, उसके बाद अभी शायद से कुछ और चेंजेस करे हैं। तो ये सारी स्क्रीन फाइनलाइज हुई, उसके बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक नीचे तुम देखोगे सारे, पहले हमने एक होम पेज उसका डिज़ाइन करा, होम पेज डिज़ाइन करा, उसमें ये वाला पेज हमने सोचा कि ओके ऐसा जब भी कोई इवेंट होगा तो होम पेज होगा कि वहाँ पे सारे इवेंट्स, जो भी इवेंट होने वाला है या कोई अपकमिंग इवेंट या पास्ट इवेंट जो भी है सब कुछ उसमें यहाँ पे शो करेगा। उसके लिए एक अलग सा पेज बनाया, एंड होम पेज पे ये सब रहता हमारे। एंड देन we had two more pages like about us section में पूरा about GDSC LNCT and जो भी चीज़ें थी Discord community के link and everything were there, and एक section था टीम का, our team। so यहाँ पे सारे जो भी टीम मेंबर्स हैं सबकी फोटोज। देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक कोई भी इवेंट पब्लिश करेंगे तो यहाँ पे कैसा दिखने वाला है वो, तो उसके लिए हम लोग ने अलग अलग बैठ के कार्ड्स ड्रॉ करे, बहुत सारे कार्ड्स बनाए थे। फाइनलाइज कोई एक ही फाइन करा था आई गेस, एंड या ये बहुत ही सारे बनाए थे, लाइक अगर डार्क यूआई देखने वाले तो हम लोग ये वाला कार्ड यूज करने वाले थे, बट सिंस यूआई हम लोग का लाइट था देन वी टुक दिस वन आई गेस। हाँ ये दिस वन वी टुक, एंड या एंड उसके बाद सिर्फ हमने यूआई डिजाइनिंग में यूज नहीं करा है फिग्मा। फिग्मा एक बहुत वास्ट टूल है, तुम लोग उसको बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। तो फिग्मा हम लोग ने सिर्फ यूआई डिजाइनिंग में ही नहीं यूज करा, हम लोग ने इसके जब प्ले स्टोर पब्लिश करा था एप्लीकेशन तो मॉकअप्स भी थे, मॉकअप्स बनाने थे, एंड सो या ये मॉकअप्स ही हम लोग ने फिग्मा का यूज करके बनाया था। तो फिग्मा का यूज जरूरी नहीं तुम यूआई डिजाइनिंग के लिए करो, प्रोटोटाइपिंग के लिए कुछ बैनर तुम्हें बनाना है सिंपल तो तुम वो भी बना सकते हो, एंड बहुत सारे यूजेस हैं फिग्मा के। कूल, आई गेस ये काफ़ी था, एंड चलो ठीक है वापस फाइल्स तक चलते हैं। वापस जो अपन ने बनाया था मैं उस वाली फाइल पे वापस जा रहा हूँ, ये आई गेस ये वाला प्रोजेक्ट। हाँ सो या ये अपने डिज़ाइन बनाया था, एक बार फिर से इसको लाइव देख लेते हैं कि क्या कैसे वर्क कर रही है सारी चीज़ें। मैंने बेसिकली कुछ नहीं करा इसमें, टेक्स्ट ऐड करे दो तीन और एक ही शेप यूज़ करा इसमें। मैंने कौन सा जो कि रेक्टेंगल यूज़ करा, मैंने रेक्टेंगल, जिससे रेक्टेंगल से मैंने बटन बनाई है यहाँ पे, ये बटन्स जो हैं सारी रेक्टेंगल से मैंने बनाई है, एंड पीछे बैकग्राउंड में लाइक इसको 3D के इफेक्ट देने के लिए, हवर इफेक्ट देने के लिए मैंने इसमें यहाँ पे रेक्टेंगल शेप का यूज़ करा है, एंड उससे थोड़ा मैंने उसमें ड्रॉप शैडो ऐड करके एक बैकग्राउंड ऐड कर दिया, तो उससे 3D हवरिंग लुक आ रहा है इसमें। एंड या स्किल सेक्शन पे जाते हैं, कुछ नहीं करा, बस एक कार्ड क्रिएट कर लिया, उसको उसमें ड्रॉप शैडोज ऐड करिए। ड्रॉप शैडो अगर तो देखो ज़्यादा लग रही है तो इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो, यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर लो उस सारे एलिमेंट को जिसमें ड्रॉप शैडो कम करनी है, 25% 10%। कूल। और अगर कलर चेंज करना है तो कलर भी तुम लोग चेंज कर सकते हो, कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ब्लू। नो हाँ ठीक, थोड़ी स्टाइलिंग इसकी चेंज करके देखते हैं। हाँ ग्रेट, ड्रॉप शैडो इसमें सबके मैं ड्रॉप शैडो सेम करने वाला हूँ, सो सबके ड्रॉप शैडो में सबके कलर्स में ओपेसिटी इसकी 10 इस ड्रॉप शैडो 10%। फुल अब चेक करते हैं इसको लाइव कैसा दिख रहा है। मैंने फ्रेम को सिलेक्ट करा, टॉप राइट में एक प्ले बटन है, उस पर मैं क्लिक करके देख सकता हूँ कि ओके लाइव मेरा कैसा दिख रहा है। और इमेजेस लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सी नहीं, इस तरह अच्छा लग रहा है थोड़ा। होम पेज अगेन स्किल्स लुक्स ग्रेट, एंड आई गेस शायद से अपना टाइम हो रहा है रैप अप करने का, तो या ये देखो होम पेज मेरा अच्छा लग रहा है, स्किल्स
वापस यहाँ बैकग्राउंड कलर मेरे को ग्रीन दिख, ब्लू जो मैंने करा है इसमें बैकग्राउंड जो एक ऐड करा है 3D इफेक्ट मैंने, उसमें मैंने उसको ब्लू दे दिया कलर, या कुछ चीज़ें चेंज करी है एंड कूल। सो या टाइम हो रहा है रैप अप करने का, तो आई गेस काफ़ी था ये। प्लीज़ बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कैसा लगा तुम लोग ये वेबिनार, लाइक कुछ सीखने को मिला, और किसी ने अगर कुछ बनाया है तो प्लीज़ वो शेयर कर सकते हो तुम हमारे साथ। या मैं देखा Yeah, so I just request like even if you try to make it after this session, please do share us the link. Share option is available there. You can see the share blue button, and uske baad there would be a link. Then you can send it on DM or either on Discord. Yeah, sure, Hari. Please share your screen. I would love to see. Um, Hari, you can share your screen, I guess. Host the website. There is no web page. Like it's just a prototype link, universal prototype link which you get, and that link could be shared to anyone, and anyone would be able to see that prototype on the web page on their desktop. So there won't be any hosting something kind of thing which would be done. There would be a universal link for prototype, and that prototype link can be shared to anyone. Okay, so Shubhi is asking, I'm not able to link page 1 and page 2. So I'll just share my screen again and show it to you how to do that. Till then, Hari, you can just drop the link of your UI here. I can definitely see your design and review it. So I'll just show it. जो भी interactions मेरे को add करनी है, I'll just go to like prototype. यहाँ पे मैं जाऊँगा and मैं सारे interactions अभी delete करूँगा जो भी बीच के interactions हैं, अभी बताने के लिए कि कुछ interactions add करने हैं, मैं इस सारे interaction को भी remove कर दूँगा and और कोई interaction home page, इसको भी मैंने remove कर दिया, शायद से आगे कोई interactions नहीं बचे हैं इसमें। So अब मेरे पास एक basic वो है, इसको भी मैं delete करता हूँ। Cool, तो अब मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्किल्स, जब भी मैं होम पेज पे हूँ, होम पेज पे अब मैं स्किल्स पे क्लिक करूँ तो मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँ किस पे, सेकंड स्क्रीन पे, जो कि है मेरी स्किल्स वाली स्क्रीन, मेन स्क्रीन। सो मैं यहाँ पे राइट साइड में जो है डिजाइन प्रोटोटाइप एंड इंस्पेक्ट लिखा है, आई विल जस्ट क्लिक ऑन प्रोटोटाइप एंड यहाँ पे एक वाइट डॉट अपेयर हो जाता है। जब भी तुम प्रोटोटाइप पे क्लिक करोगे एक वाइट डॉट अपेयर हो जाएगा। सी, जब डिजाइन पे नहीं है कुछ वाइट डॉट, एंड देन जैसे प्रोटोटाइप पे क्लिक करोगे वाइट डॉट अपेयर हो जाता है, वाइट डॉट। और हमेशा याद रखना यार, स्केल मत यूज करके इसको सेलेक्ट करना नहीं होगा, स्केल टूल मत यूज करना, मूव टूल यूज करना, एंड उसके बाद ड्रैग करना इसको जहाँ जो भी तुम रिडायरेक्ट, जिस पे भी रिडायरेक्ट करना चाहते हो। लाइक अगर तुम स्किल्स पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्टली उस पर एरो कर दो पॉइंट, और ये हो गया। अब कुछ इंटरेक्शन डिटेल्स हैं, लाइक क्या चाहते हो कि कैसे हो, लाइक जब उसको ड्रैग करो तब स्क्रीन दूसरी चेंज हो जाए, या फिर जब तुम टैप करो। सो आई गेस टैप करने पे ही अपन यहाँ पे प्रेफर करेंगे। टैप करने के बाद नेविगेट टू द स्क्रीन, लाइक मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एक बार, स्किल्स पेज, इसको रीनेम कर दिया मैंने इसको, तब अच्छे समझ में आ सकता है। cool. ये इंटरेक्शन था मेरा, मैंने इसको स्किल्स को रीडायरेक्ट करा किस पे, स्किल्स पेज पे, एंड स्किल्स पेज। कूल। और मूव इन एनिमेशन, यहाँ तुम एनिमेट कर सकते हो, डिसॉल्व, मूव इन, कुछ भी एनिमेशन यहाँ ऐड कर सकते हो तुम लोग जो तुम चाहो। एंड 300 मिलीसेकंड्स ये मैं इसको एज इट इज रहने दूंगा। एंड अब मैं वापस चेक करूंगा, एक एनिमेशन और ऐड कर दूंगा कि जब मैं सेकंड पेज पे हूँ, स्किल्स पेज पे हूँ, एंड मेरे को वापस से होम पेज पे जाना है मेरे, तो मैं वापस प्रोटोटाइप पे क्लिक करूंगा, राइट साइड में टॉप राइट में प्रोटोटाइप जो लिखा है उस पर क्लिक करूंगा, डॉट अपीयर होगा, डॉट को मैं वापस रीडायरेक्ट कर दूंगा होम पेज पे अपने, एंड सब कुछ एज इट इज रहने दूंगा। एक बार अब लाइव इसको देखते हैं। टॉप राइट में मैंने प्ले बटन में क्लिक करा, एंड या सी स्किल्स पे क्लिक कर रहे हैं, स्किल्स पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, एंड होम पेज पे क्लिक करके होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। cool, so I guess समझ में आ गया होगा अब। Shubhi, and anyone who wishes to kind of show their designs. I see. I just saw someone, but it's all right. Okay, yeah, we have the designs.
Let me just see it. I'm like I joined a little late, so like the It's images that were imported that I couldn't import in my designs. So yeah, definitely. It's all right. I'll just log in and I'll just check your design. Um, I don't have the access. I think you need to give the access to me. Else, what you can do is just screen share now. Just You can uh, just screen share your project. yes, Okay. ma'am, I'll share the screen. yeah, sure. Exactly how he hasn't given the universal link. When he's just till then he's sharing the screen. There are many such tools for wireframing. Like one I have just added below, Balsamic. So using this tool, you can make wireframes. Wireframes are like the paper sketch which you make on your mobile, on your notebooks and something. So wireframes, you can definitely use this tool. This is an online tool. It's a cloud storage tool. So audio design is all stored in the cloud. Then you can use many other tools. So I would be dropping the link one by one soon. Ma'am, is it being shared? Yeah, it's visible. Like I created this. Ma'am, I haven't like image is not imported. Like I joined a little late, so like searching the images and Yeah, importing was so. still I'm it's like that. really great to have Ace to the pace, whatever he was doing. Like he was really doing it very fast. So that's great. I Yes, hope you ma'am. learned something. Yes, ma'am. Okay, I I'll learned. just tell again like how to import images. Should I? Yes, sir. Okay, cool. Okay, okay, go ahead. So yeah, कभी भी कोई अगर इमेज ऐड करनी है तो मैं जाता हूँ, एक बार मैं दूसरा टैब खोल लेता हूँ एंड icons8.com से मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई सा भी एक आइकन इंपोर्ट करना है. सो icons8 नहीं, तुम गूगल पे कुछ भी सर्च कर लो, लाइक फोटोग्राफी या कोई लैंडस्केप कर लेते हैं. लैंडस्केप हम इमेज ऐड करना चाहते हैं अपने उसमें. सो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ. लुक्स गुड. यहाँ से डायरेक्ट तुम कॉपी कर सकते हो, इमेज कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो, या फिर बहुत सारे ऑप्शन से डाउनलोड करके इंपोर्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, डाउनलोड करके डायरेक्ट फिग्मा में. यहाँ से मैं बता रहा हूँ सिर्फ कॉपी करोगे, इमेज कॉपी पे क्लिक करा तुमने एंड वापस अपने फिग्मा पे वापस जाने के बाद बस मेरे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है एंड जस्ट पेस्ट इट. सी, ये इमेज मेरी यहाँ पे आ गई. एंड जस्ट ऐड सम व्हेरेवर आई लाइक ये यहाँ पे अच्छा लगेगा, कहीं अच्छा नहीं लगेगा इस प्रोजेक्ट में. तो या रीसाइज कर सकते हो इसको जैसा भी तुम चाहो, डिलीट कर सकते हो, वापस से डिलीट करके जो भी करना है तुम कर सकते हो इस इमेज के साथ. लाइक बस कॉपी एंड पेस्ट एंड यू डन. Sir, and the drop shadow वाला part. कूल, ड्रॉप शैडो वाला पार्ट. सो अगर मेरे को कुछ भी, एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया, लाइक यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिया, मैंने इसमें कुछ इसकी डिजाइन चेंज करके इसको 50 बॉर्डर रेडियस दे दिया. बॉर्डर रेडियस में ये बॉर्डर रेडियस है इसका, ठीक है. मैं वापस इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूंगा जिसमें ड्रॉप शैडो ऐड करना है मेरे को. ड्रॉप शैडो पे ये क्लिक करा मैंने, इफेक्ट्स में गया, ड्रॉप शैडो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया. इसके मैं इसमें गया, ठीक है. मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज चेंज कर सकता हूँ. मैं प्रॉपर्टीज लाइक एक्स और वाई एक्सिस पे ड्रॉप शैडो की पोजीशन में चेंज कर सकता हूँ. मैं 50 करके देखता हूँ इसको, ठीक है. थोड़ा राइट आ गया तो मेरे को थोड़ा इसको ड्रैग करना है. तो डायरेक्ट तुम्हें नंबर चेंज करने के अच्छे यहाँ से स्क्रॉल डायरेक्ट होल्ड करके लेफ्ट राइट करके तुम चेंज कर सकते हो इसके नंबर. सो ये काफ़ी अच्छा है. वाई पे मैं थोड़ा नीचे कर दूंगा इसको ताकि 3D थोड़ा हवरिंग लुक लगे इसका. एंड कलर मेरे को अगर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकता हूँ मैं इसका. रेड नहीं, थोड़ा ओके कूल. या बैकग्राउंड वाइट, कूल. सो आई गेस अब समझ में आ गया होगा ये बॉर्डर रेडियस कैसे ऐड करा मैंने, बॉर्डर रेडियस से ड्रॉप शैडो या फिर इमेजेस कैसे इंपोर्ट करी मैंने पूरे उसमें प्रोजेक्ट में अपने. तो या
Yes, sir. Yes, sir. Got it. I think the best way to kind of learn. Hello, am I audible? Yeah, go ahead. Okay, so the best way to learn any design or something, not to get a hands-on on whatever you want, is like you kind of replicate any of your favorite product. Like if you have a WhatsApp app, we all use WhatsApp now. Try replicating or copying the exact thing. So there you will be learning a lot of stuff like border, radius, and opacity and everything. So you guys will be learning a lot of stuff from it. So I request you all, like even I used to learn this UI. Now I used to have this Instagram app. I used to copy the exact login page and exact home page of this Instagram on my Figma, and I used to kind of replicate it one by one. So that's how you learn. And I think if you guys have any other doubts, like there are many such tools. If you wish to see our mobile application, I have just added this Play Store link. You guys can download every activity or any such event which we plan. Everything is listed on this application. This is made through Flutter. If anyone loves to contribute to this application, you guys are free to do it. And the UI is also made through Figma only. So you guys can check this out. And there are many such tools which are used in order to design any UI of any application. There are many websites for icons and for illustrations, for getting the gradients. I think yesterday Aaron told you about the gradient. There is also one website where you get the gradients, just the gradient background. So all these comes after a lot of hands-on practice, and even we can provide you some of the links of the gradients, some icons, some good illustrations, and that you can use in your future project. So I think we are going to end this session. So if you guys have any doubt or something, please let us know again, or just give me a feedback like how was the session. And of course we need to take a photograph after every event. So yeah. Thank you so much, Ayush, Shrey. Thank you. Cool. So अगर कोई भी डाउट हो कभी, या फिर तुमने कुछ डिजाइन बनाए हैं या प्रोटोटाइप बनाए हैं, एंड कोई भी डाउट कभी हो, तो मैं अपना लिंक्डइन वो हैंडल शेयर कर देता हूँ यहाँ पे. प्लीज कनेक्ट करना, और फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, लाइक कुछ भी यार, कितने भी सही डाउट तुम्हें लग रहे हैं, प्लीज पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. I'll share my Yeah. Instagram. Great. So I just request everyone to turn on their cameras again. I usually take a photograph after every event. So that's a mandatory for me. Cool. So everyone, please turn on your cameras. Please. I'll just end the meeting, huh? I'll just end this recording.